Hi, welcome to the Travel Tales, and with this video I'm going to share what I'm going to offer my audience through this channel. And I know in past I've been randomly posting short clips in the channel, but yeah, I guess this is going to be an official introductory video, um, where things are going to be more transparent. So apart from capturing and sharing the beautiful moments with my camera, I'm also going to share the meaningful insights and experience behind it. Just like most of you, I am also a part of that massive job community, and I too have to juggle between the holidays and the weekends to make the trips possible. I'll be sharing how I plan my trips, and we usually do budget trips. So, because but we also prioritize the convenience and comfort always, and because I guess there is no point of travel when you're going to be stressed again, and because I know a full-time job is a very stressful, and you have to take time for yourself and look for the time where you can just get find an escape from it and refresh yourself. So travel is a very good option for that. So that's why we choose convenience and comfort over a lot of things, because there is no point of being stressed again when you come out from a stressed zone already. And the second point is related to with this only, and that is why we prefer self-driving rather taking buses or trains, and obviously not airplane, because then it won't be a budget trip for us. And secondly, we love driving. Me and my friend, we love to be on road, and we also feel that's a convenience in terms of time, convenience of breaks. You can stop where you want to. You can stop where you want to eat. You can stop how many times you can stop. कहीं भी रुक सकते हो आप, कहीं भी जहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, कितनी भी देर का लेना है, यू आर नॉट टाइम बाउंडेड. एंड it also eliminates the hustle and bustle of, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन और बसेस, आपको पहली बात उनके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी. एंड देन देयर इज़ अ हसल ऑफ अपने बैग्स को उठाओ. अगर मैं मेट्रो से जा रहा हूँ ISBT, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ से मेट्रो तक जाना, फिर मेट्रो से ISBT जाना, देन वहाँ से बस का वेट करना, फिर बस में सामान चढ़ाना, फिर बस जहाँ पे बस टर्मिनल तक छोड़ेगी आपको, वहाँ से बैग उठा के फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट लेना. सो दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड इन सब में अगर फिर वहाँ पे जाके दूसरी लोकेशन में आपको कैब्स बुक करनी है, कुछ है, अगर आप पहाड़ पे जा रहे हैं आपको ऊबर नहीं मिलेगी, एंड फिर लोकल्स के साथ नेगोशिएट करना. सो इट comes with a lot of stress. So that's why we choose to self drive. And so yeah, I was saying second is choosing car to go with. And I own a Tata Punch, and my friend, he owns a MG Hector Plus. So obviously that depends on the people, how many people are traveling. Um, my car accommodates four people comfortably, and his car is a six-seater. So yeah, when we are five or six people, we would prefer his car. Secondly, it also depends upon the depends कि कहाँ जा रहे हैं. एवरेज मेरी गाड़ी ज़्यादा देगी ऑब्वियसली. एंड कहाँ पे हमको पैसे बचाने हैं इसमें. अगर लंबा ट्रिप है तो आई गेस वी टेक टाटा पंच.
और कंफर्टेबली जाना है देन MG हेक्टर। और पावर, या बिकॉज MG में पावर ज़्यादा है, तो डिपेंड्स कि कौन से माउंटेन रेंज में हम जा रहे हैं एंड कहाँ पे पावर की ज़रूरत पड़ सकती है हमको। सो या ऑल दीज फैक्टर्स। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अकोमोडेशन, राइट। एंड हमने आज तक होटल्स में स्टे नहीं किया। या वी हैव बीन अ B&B lover, and I myself personally love Airbnbs. There are many reasons to it. The first reason is you get a homely vibe, because सारा रीज़न ही ट्रैवल करने का ये है टू बी स्ट्रेस फ्री। आई नो इट्स अ डिबेटेबल, लॉट ऑफ पीपल विल से अगर स्ट्रेस आपको कम ही करना है तो यू शुड प्रेफर होटल्स, बिकॉज वहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बट सी, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको कैसी वाइब चाहिए। आपको होटल में अगर सिर्फ आपको कॉल पे ऑर्डर देने हैं खाने के पीने के कुछ भी, वो सारी comfortness चाहिए, then you should go for hotels. But me and my uh, friends, we love Airbnbs, because firstly एक वो homely vibe आपको देता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो typical होटल का एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे 6x6 का बेड लगा है, वहीं टिपिकल यू आर फेमिलियर विद द फर्नीचर। सारे होटल्स में सेम फर्नीचर लगा होता है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट मेक्स इट different is the service you get, the कितना प्रीमियम फर्नीचर और ये सारी चीज़ें, राइट, ऑल द amenities you get. um, तो या we personally like Airbnbs because there's a personalized story behind the owner of the house, इससे पता चलता है। एंड फर्नीचर, या होटल्स में यू विल सी द टिपिकल फर्नीचर, सेम एक डेस्क है, एक चेयर है, एक टीवी है, एक साइड टेबल पे यू गेट दैट ट्रे जिसमें केटल है एंड आपको कॉफ़ी चाय कुछ बनानी है। तो कई होटल्स में बैल्कनीज नहीं होती है, वो बस एक ग्लास बैल्कनी टाइप्स होती है जहाँ पे कर्टन्स लगे होते हैं। आपको उनको हटाओ तो यू विल गेट द सनलाइट। कहीं कहीं कमरों में वो भी नहीं आती, ठीक है। एंड बट एयरबीएनबीज में ऐसा नहीं है, हर घर की एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। एंड या फर्नीचर, क्या फर्नीचर लगा है, कैसा है। अगर वो सिर्फ एक B&B, आई मीन अगर आप एयरबीएनबीज यूज़ करते आए हो देन यू विल गेट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रॉपर्टीज सिर्फ स्टेइंग के लिए एयरबीएनबी के और पैसे कमाने के पर्पज से डाली गई, एंड दोज प्रॉपर्टी जो जेन्युइनली ओनर बहुत मेंटेन करके रखते हैं और उनके पर्सनल यूज़ में भी वो उसको करते हैं यूज़। सो उससे हमको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि किस प्रॉपर्टी में कैसा फर्नीचर, क्या क्या चीज़ें घर में लगी हुई हैं, एंड वो काफ़ी एक्साइट करती है हम सब लोगों को। तो काफ़ी अच्छा लगता है, नो, इट फील्स गुड। एंड या यू गेट अ किचन, you get to cook your own food, and we love cooking our breakfast. And कभी भी आपको चाय चाहिए, कितनी बार भी चाय पीनी है, it also saves a good amount of money, by the way. And I love cooking, so it's also a part of the reason. But it's not like कि हम वहाँ पे प्रेशर कुकर लेके सीटियाँ लगा रहे हैं और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब वहीं चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वी ओनली कुक आवर ब्रेकफास्ट एंड चाय वाय जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। या दिस इज लंच वगैरह हम फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या तो हम बाहर चले जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को। एंड ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि सी ऐसा नहीं कि हम होटल्स में कभी रुके नहीं हैं, बट होटल्स ओनली गिव यू रूम्स। एंड अगर हम 4 लोग हैं, हमने 2 रूम्स लिए हैं, तो आप चारों फ्रेंड्स हैं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यू आर यूजिंग ओनली 1 रूम फॉर मोस्ट ऑफ योर टाइम। एंड आप सिर्फ सोने के लिए उनके बेड्स यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप पार्टी कर रहे हो, आप कुछ भी बातें शातें कर रहे हो, राइट, सो मोस्टली आप एक ही रूम में मिलोगे सारे के सारे। एंड दैट्स हाउ, बिकॉज ऐसा नहीं कि 4 लोग हैं या फिर ज़्यादा लोग हैं तो सारे अपने अपने रूम्स में हैं। आप मज़े करोगे, आप बातें करोगे, आप
फ़नी चीज़ें करोगे, राइट? सो या एयरबीएनबीज में यू गेट सेपरेट रूम्स, प्राइवेसी मिलती है, एंड प्लस यू गेट द फीलिंग कि हम सब एक ही छत के नीचे हैं, राइट? साम पास पास में, एंड देयर इज मोर प्राइवेसी। एंड या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको सेम ही प्राइस में, या प्राइस की बात बाद में आती है, चलो, यू बट यू गेट अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल रूम्स यू गेट ड्राइंग या लिविंग रूम, जो भी वो है, हॉल मिलता है, राइट? प्रॉपर सोफे लगे हैं वहाँ पे, टीवी लगा है, आप चिल करो वहाँ पे, पार्टी करो। एंड आई थिंक दैट इज़ अ डेडिकेटेड प्लेस, स्पेस फॉर दिस टाइप ऑफ गैदरिंग। वो वहीं पे होनी चाहिए, रूम्स में नहीं अच्छी लगती। वो बेड पे बैठे हुए हो, खाना भी उसी में खा रहे हो, लाइक आई डोंट लाइक इट। तो या यू गेट मोस्टली यू गेट अ ड्राइंग रूम या हॉल, लिविंग रूम, जो भी आप उसको कहो। इसके अलावा you also get this opportunity of knowing the place better where you are staying, because hotels में nobody likes to roam around hotel। अगर वो बहुत 5 स्टार होटल नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी amenities, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सब नहीं है, nobody likes to roam around, because once you get out from the room, out from your room, there are people, guests, other guests everywhere, hotel staff, so वो मज़ा नहीं आता। सो यू वुड अवॉइड, आई फील, तुम अपने रूम में पड़े रहोगे, या तो तुम बाहर जहाँ तुमको घूमना है वहाँ तुम जाओगे। एयरबीएनबीज में, बिकॉज दे आर, या तो वो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ होंगी अलग से अपना प्राइवेट में कहीं, या तो फिर वो कॉलोनीज, अच्छी रेसिडेंसीज इन जगहों में होंगी, अच्छे गाँव में। अच्छे गांव क्या, मतलब जो भी है गांव में, एंड आसपास आप देखोगे लोग रह रहे हैं, यू विल सी द रियलिटी नॉट इन टर्म्स की कुछ अलग ही वहाँ पे चल रहा है, बट यू विल गेट टू नो द प्लेस मोर बेटर, यू विल गेट टू सी द पीपल हु आर लिविंग देयर, एंड उनकी वो डेली रोज़मर्रा में कैसे क्या करते हैं, क्या अगर वो पहाड़ पे हैं तो उनकी लाइफ अलग होगी ऑब्वियसली, एंड डिपेंड्स कि किसी शहर में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़मर्रा के काम करते हुए देखना, उनके बिहेवियर्स, एंड हाउ डू दे टॉक टू अदर पीपल, कैसे वो ग्रीट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, राइट? एंड या you can go for a walk anytime, you can go out how many times, कभी भी आप जाओ, there is nobody stopping you, and yeah, that is all about accommodation. And I will also show you how do we book Airbnbs। अभी मेरे पास लैपटॉप तो खुला है, but let me see if I can uh, but before that चलो ठीक है, दिखा देता हूँ, एक मिनट। Airbnb, सॉरी यार, एक कॉल आ गया था। सो या आई वाज टेलिंग, I will also share how do we plan our trips in terms of choosing all the things, कि रात में ट्रैवल करना है या दिन में ट्रैवल करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो आपको इन कमिंग फ्यूचर वीडियोस आई विल बी शेयरिंग, कौन सी सिटीज़ रात में ट्रैवल आप कर सकते हो अगर आप किसका टेक्स्ट मैसेज है, एक मिनट। Apologies guys, I'm shooting from my iPhone, and that's why it's a lot of disturbance. I don't have a spare camera to shoot, and for the time being ऐसे ही काम चलाओ। So क्या कह रहा था मैं, I was telling कि we will show you how do we plan Airbnbs, and उसको हम उसके मैप्स के थ्रू उसको मनूवर और उसको नेविगेट करते हैं, डिपेंड्स कि हमको किस लोकेशन में रुकना है एंड किन जगहों में हमको जाना है, ठीक है? तो उसके आसपास की लोकेशन में हम एयरबीएनबीज जो हमारे रास्ते में पड़ रही हैं, या फिर कोई ऐसी स्टैंड अलोन लोकेशन है, तो हम फिर उसके हिसाब से ही बाकी सारी प्लानिंग करते हैं। एंड ऑल्सो कि चेक इन टाइम क्या है एयरबीएनबी का, तो उसके हिसाब से हम मोस्टली अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। सो मोस्टली एयरबीएनबीज का टाइम जो मैंने देखा है चेक इन का, वो
आफ्टरनून में होता है 1 बजे से लेके 3 बजे तक का, डिपेंड्स, एनीबडी कैन चूज अ टाइम, ठीक है। और उनके चेकआउट टाइम 11 बजे के होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। सो डिपेंड्स कि हमको कितना दूर जाना है, उसके हिसाब से हम अपनी दिल्ली से गुड़गांव से ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो इट ऑल्सो अभी उड़ गया तू भी, तो कि डिस्टेंस कितना है, हाउ मच टाइम दैट्स गोना टेक फॉर अस टू रीच। सो उसी हिसाब से हम अपने ब्रेक्स और कौन सा हाईवे हमको चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें चॉइसेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमको नीचे कहीं जाना है साउथ में, मतलब नॉट टू फार, बट ये जयपुर कोटा या कोई भी, तो विल चूज़ कि कौन सा हाईवे बेस्ट रहेगा, कौन से रूट बेस्ट रहेगा, रोड्स कैसी हैं, पूछेंगे लोगों से जिन्होंने उन एक्सप्रेस वेज, स्टेट हाईवेज पे ट्रैवल किया है, तो उससे हमको स्पीड का भी पता लगता है कि कितनी स्पीड से कितनी जल्दी हम उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बिकॉज सी आई टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैं जयपुर 3-4 बार ही गया हूँ, एंड इनिशियली जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ था, उसके पहले तक मुझे सिर्फ वो जयपुर वाला जो टिपिकल हाईवे है गुड़गांव से लग के, मुझे सिर्फ उसके बारे में पता था। एंड जैसे ही मैं उस हाईवे पर उतरता था, वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे ट्रक्स एंड लोग कुछ भी चल रहे हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा वो ड्राइविंग में स्ट्रेस ऐड करता है, बिकॉज कोई कोई 80 पे चल रहा है, कोई 180 पे चल रहा है, कोई बहुत स्लो चल रहा है, किसी ट्रक ने एकदम ही, कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं उस हाईवे पे। एंड उसके बाद जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आया, आई नो उसका टोल ज़्यादा था, बट वो पूरा खाली था। बट दैट ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट, बिकॉज उस पर कोई भी नहीं था, बहुत सुनसान था वो हाईवे। अभी भी है आई गेस, ज़्यादा कुछ नहीं है उस पर, 1-2-4 रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं, वो क्या कहते हैं उनको, स्टॉपवेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पेट्रोल, रेस्टोरेंट, ब्रेक पॉइंट होता है एक, तो वो काफ़ी उसमें बने नहीं अभी तक। बट हाँ, क्योंकि मुझे जयपुर तक ही जाना था, तो ऑल इट टुक वाज ओनली 3 आवर्स, एंड अच्छी स्पीड में मैंने अच्छे टाइम में वो पूरा डिस्टेंस कवर किया। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस मुझे नहीं फील हुआ, बिकॉज गाड़ी अपना मक्खन चल रही है, ठीक है, कोई आसपास गाड़ियाँ नहीं दिख रही, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, एंड आराम से मैं कंफर्टेबली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो या ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एंड इस पे काफ़ी रिसर्च हम करते हैं, बहुत ज़्यादा से नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जब भी किसी हम नए रूट पे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हुए जाते हैं कि व्हाट इफ़ कि अगर सेकंड टाइम उससे हमको जाना पड़े उस रूट से, सो वी कुड मेक गुड चॉइसेस, गुड डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड। सो ऐसा कुछ है। एंड एयरबीएनबीज का आई गेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो थैंक यू कि सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।